Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Dr. Yahya Noori from the platform of Digital Learning Center, Dow University of Health Science. So today we have with us a special guest, Dr. Eamon Tohid, who is a graduate of Dow University of Health Sciences 2009. And she has been to US and she has worked in preventive medicine, especially during COVID. So we are going to talk about her experiences and her journey. Welcome, Dr. Eamon. Thank you for having me, and it's a pleasure for me to be here. Dr. Eamon, you started from Dow. So I want you to recap your journey from Dow to today where you are. इसमें बहुत सारी यादें हैं, डाउ की यादें हैं, और जर्नी में आई ग्रेजुएटेड एज आपने बताया कि 2009। उसके बाद मैं यूएस मूव हो गई। आई डिड माय बोर्ड्स, यूएसएमएल एग्जाम्स, फिर रेजिडेंसी की प्रिवेंटिव मेडिसिन में। उसमें लास्ट ईयर में मास्टर्स ऑफ पब्लिक हेल्थ भी कराते हैं। तो वो करने के बाद जो है मैं नॉन प्रॉफिट क्लिनिक्स में काम करती रही एज ए मेडिकल डायरेक्टर, and then education and academics में भी काफी involved रही, and then that's how it became my field. Right. So can you tell me, for the interest of the students who are watching you, what is the pathway from here to preventive medicine? So preventive medicine जो है वो just like usual any residency, internal medicine, family medicine, इसमें 1 साल internal medicine होता है और 2 years preventive, वो आपको उसमें सिखाते हैं public health related चीजें। तो उसमें masters of public health included होता है last year में। And then after doing that, you're free to be a medical director, an administrator, और अगर आपको academics में जाना है, non-profits में काम करना है, and even if you want to stay in touch with the clinic and healthcare, that too, because आपने internal medicine भी किया हुआ उसमें 1 साल। So it has multiple pathways. I would recommend, अगर आपका interest है system change करने में, status quo को change करने में, so definitely this is the way to go. So that is something related to leadership. Yes, for sure. So मुझे बताइएगा कि during COVID आपका क्या experience था? कोविड में आपको भी पता है, यहाँ पे भी इट वाज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, तो सिर्फ यूएस का प्रॉब्लम नहीं था। तो जैसे यहाँ पे मसले थे वैसे ही वहाँ पे भी थे। जिस तरह के चैलेंजेस यहाँ पे थे, लोग कंप्लाई नहीं कर रहे थे मास्क से, वैक्सीन से। सिमिलर थिंग वाज इन द यूएस। शुरू में पैनिक था और वही यही पब्लिक हेल्थ में आपको बताते हैं कि हम उससे हमें ये पता चला हम रेडी नहीं थे। We were not prepared for a pandemic, and I'm 100% sure if there's a next one coming, we are not ready for that either. So that's what we learned, and that's what we have to work on. So what do you think कि पब्लिक के लेवल के ऊपर, एक तो है कि गवर्नमेंट ने कुछ काम करने हैं, बट एक है प्रिवेंटिव लेवल के ऊपर, वो ऐसे कौन से काम है जो एक आम मेडिकल स्टूडेंट, एक सिंपल डॉक्टर वो कर सकता है? देखिए जी, सिर्फ ये किसी को बताना कि मास्क पहन लो पब्लिक प्लेस में इफ देयर इज एन इन्फेक्शन गोइंग ऑन, या अगर आप वैक्सीन के बारे में किसी को एक इन्फॉर्मेशन दे दें कि ये वैक्सीन आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, इससे फायदा ही है। इस तरह की जनरल बातें कि दवाओं को अवॉइड नहीं करना, लोगों में इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करना है, आप अपना फेस कवर कर लें अगर आपको कॉफ आ रही है। आई थिंक जो चीज़ें कई हजारों साल पहले रसूलुल्लाह भी समझा गए थे कि अपनी हाइजीन की आप केयर करें। इट्स द सेम थिंग, यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हाइजीन कि आप दूसरे लोगों को अपना इन्फेक्शन में स्प्रेड करें। सही। And can you tell me about what you have been doing in terms of autism और इस तरह की जो disability वाले disorders हैं? So as I told you about preventive medicine, तो फिर मैं नॉन प्रॉफिट क्लिनिक्स में काम करती रही। तो उसमें vulnerable populations में I end up, because I was very inclined in mental health, तो साइकाइट्री में काम करते करते I end up seeing this population, और मैंने ये देखा कि उनको बहुत गैप है। उनके लिए वो सारे they end up in the ER eventually, उनके लिए प्राइमरी केयर सही अवेलेबल नहीं है। And then I'm talking about one of the biggest healthcare systems in the world, US. There's no primary care available. They still go to their pediatrician for help. There's no specialized dental care available. तो जब मैंने ये गैप्स देखे हेल्थ केयर में, तो फिर मुझे हुआ कि आई नीड टू हेल्प दिस पॉपुलेशन एंड नीड टू ब्रिंग देम टू द लाइट कि इनको वो केयर मिले जो ये डिजर्व करते हैं। So are you thinking of some collaboration, आपकी एक्सपर्टीज हो, यहाँ का कोई सेंटर हो जिस पर आप काम कर सकें? जी जी, तो मैं अपना भी एक नॉन प्रॉफिट करती हूँ, सोलेस पॉइंट के नाम से। फिर देन आई वर्क फॉर दिस नॉन प्रॉफिट क्लिनिक मकहोम, और आई डू गेट अ लॉट ऑफ यूएस फंडिंग्स टू हेल्प दिस पॉपुलेशन। तो यही प्लान है। आई एम इन टच विद डॉक्टर शहजाद अरशद। उनका भी एक न्यूरो साइंस बिल्कुल सिमिलर सेंटर, न्यूरो साइकोलॉजी सेंटर है। तो आई डू प्लान टू कोलैबोरेट। आई एम मीटिंग विद द डिपार्टमेंट ऑफ डिसेबिलिटीज इन पाकिस्तान,
to figure out a way how I can help this population here. Awesome. And tell me about Goal Roti podcast. How did you come to this? So उसमें ये मेरे साथ एक दावाई थी उसमें अमरीन, शी इज फ्रॉम बैच 2010. तो हम दोनों वी आर वेरी क्लोज फ्रेंड्स, वी यूज्ड टू टॉक ऑफन. तो हमें यही था कि हाउ टू गिव बैक टू द कम्युनिटी, स्पेशली द डावाइट्स. तो हमें था कि हमें डावाइट्स का इंटरव्यू करना है, लेट्स ब्रिंग देम. तो हमने इसी से स्टार्ट किया, डावाइट्स के इंटरव्यू करने शुरू किए. स्पेशली हम चाहते थे 2000 बैच ऑनवर्ड्स कि उसके बाद वालों को भी, क्योंकि दे डोंट वांट टू कम इन द लाइमलाइट. उनको होता है यार वी वांट टू स्टे बिजी इन द वर्क, वो लीडरशिप में या सामने सिस्टम्स में नहीं आना चाहते. तो हमें था उनको सामने लाते हैं. तो फिर हमें जब हमने करना शुरू किया तो उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया. एंड वी स्टार्टेड डूइंग दीज हेल्थ टॉपिक्स, सोशल इश्यूज, मेंटल हेल्थ स्पेशली फॉर वुमेन. तो इट्स मल्टीफोल्ड एंड वी लव डूइंग इट. हमारे यहाँ हम जब PMDC जब देखते हैं ना तो दे इंक्लूड अ फ्यू थिंग्स इन द करिकुलम जो कि हम पढ़ाते हैं मगर शायद हमें और पढ़ानी चाहिए. एक लीडरशिप है और एक हेल्थ एडवोकेसी है. So your experience with preventive medicine, autism, disability, how do you think कि लीडरशिप को हम स्टूडेंट्स के अंदर किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं? हम एक इमर्जिंग लीडरशिप अकेडमी यहाँ रन करते हैं और उसमें हम पूरी यूनिवर्सिटी से स्टूडेंट्स लेते हैं एंड वी मेक देम गो थ्रू पर्टिकुलर करिकुलम जिसमें हम उनको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट, इमोशनल इंटेलिजेंस, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये सब चीज़ें सिखाते हैं. बट आई वुड लाइक योर इनपुट इन दैट एडवोकेसी एंड लीडरशिप. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो फिजिशियंस यूजुअली इग्नोर कर देते हैं, और हमें लगता है कि नहीं हमें हेल्थ केयर और क्लिनिक पे ही फोकस करना है. बट जब आप अपना क्लिनिक भी बनाते हो देन लीडरशिप कम्स इनटू प्ले. लीडरशिप डिफरेंट लेवल्स पे भी आती है, इवन घर में भी आती है. आप अपने बच्चे मैनेज करो, दैट इज ऑल्सो लीडरशिप. लीडरशिप ये नहीं कि आप कॉर्पोरेट लेवल पे ही कर रहे हैं. लीडरशिप में मैं ये लेसन जो मैंने खुद लर्न किया है वही मैं सबको बताऊंगी कि इट शुड नॉट बी ईगो सेंट्रिक, इट शुड बी कोलैबोरेटिव. कि आपको कोई चीज समझ नहीं आ रही है, लेट्स सिट टुगेदर एंड सॉल्व इट rather than being the dictator, then you leave your team. So it has to be collaborative, you have to take the team together. और जहाँ तक ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम और इसमें लीडरशिप की बात है, तो मैंने खुद उसमें एक पूरा कोर्स किया, लीडरशिप डेवलपमेंट फॉर पीपल विद इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी. यू हैव टू बी कल्चरली एंड जिस टॉपिक पे आप काम कर रहे हो ना, यू हैव टू बी कम्पिटेंट इन दैट. हर चीज़ जो है वो उसके हिसाब से टेलर होनी चाहिए. तो अगर मैं फॉर एग्जांपल स्विमिंग सीख रही हूँ तो मैं उसमें अपने ये मेडिकल स्किल्स नहीं लगा सकती. एवरीथिंग इज डिफरेंट. अगर मैं एक्टिंग कर रही हूँ, इट हैज टू बी डिफरेंट. सो इफ इट इज अ स्पेशलाइज्ड क्लिनिक फॉर दोज पीपल, तो लीडरशिप गेट्स टेलर्ड टुवर्ड्स दैट कि वो उन लोगों को, क्योंकि चीज़ें दे हैव अ शॉर्ट अंडरस्टैंडिंग स्पैन, दे अंडरस्टैंड थिंग्स लेट. इफ यू टॉक टू देम, उनको थोड़ा टाइम लगता है समझने में. तो पेशेंस. So these kind of things. अगर मुझे लीडरशिप का कोर्स मिले, मैं सबसे पहले पेशेंस, लेस ईगो, नो ईगो एक्चुअली, एंड देन टीम वर्क. राइट. एंड व्हाट डू यू थिंक कि हमारे स्टूडेंट्स, मैं नॉर्मली कहता हूँ कि भाई इफ यू आर वर्किंग देन समबडी हैज टू नो कि आप काम कर रहे हैं. मगर हम उसको मार्केटिंग भी कह सकते हैं, हम उसको एडवोकेसी भी कह सकते हैं. यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट योर वर्क, नॉट लाइक blowing your own trumpet. तो व्हाट इज योर एडवाइस टू द स्टूडेंट्स कि भाई कितना जरूरी है ये कि आप अपने काम के बारे में बात करें? एडवाइस मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन एडवोकेसी में ये है कि जैसे मैं जिन लोगों के लिए काम करती हूँ, जो कि मेरे वो बेचारे ज़्यादातर नॉन वर्बल हैं, ठीक है, कैन नॉट स्पीक. तो अगर उनका कोई इशू है तो आई हैव टू एडवोकेट फॉर देम, और एनीवन हु अंडरस्टैंड्स दिस पॉपुलेशन. अगर एक माँ है, उसके बच्चे को ऑटिज्म है, शी विल बी द एडवोकेट फॉर दैट किड, क्योंकि लोगों को समझ नहीं आएगा उसके इश्यूज क्या हैं. सो एडवोकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट. इवन आप अगर एक नॉर्मल क्लिनिक में काम कर रहे हैं, आप GI के डॉक्टर हैं फॉर एग्जांपल, यू हैव टू एडवोकेट फॉर योर पेशेंट्स. बहुत दफा इंश्योरेंस डिनाई कर देता चीजें, हम नहीं कवर कर रहे हैं, हम ये चीज कवर नहीं कर रहे हैं. यू हैव टू एडवोकेट फॉर योर पेशेंट, यू हैव टू जस्टिफाई कि मुझे ये क्यों चाहिए, क्यों करना है, ये मेडिसिन में क्यों दे रहा हूँ. एडवोकेसी इज वेरी इंपॉर्टेंट एट एवरी लेवल. और अगर पब्लिक हेल्थ में आए तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे आपको सिस्टम्स चेंज करने होते हैं. यू हैव टू फाइट द गवर्नमेंट सेक्टर टू ब्रिंग द चेंज. So it's very important advocacy. Okay. Or your advice to the upcoming doctors? My advice would be work hard. It does pay off. And then make your own path. और ये learning जो है ना, ये it's lifelong. आप कभी shortcut नहीं ले सकते. That's what I would suggest. कि और आपका path भी evolve होता जाता है. अगर अभी आपको लग रहा है ना कि I don't know what I'm doing, मैं ये तो नहीं करना चाहता था, मुझे तो कोई CEO बनना था,
maybe not right now, but after 10 years you'll see. So आपका pathway अब आप जैसे अगर आप सोचेंगे आप जहाँ से आपने start किया था right now where you are, it just keeps evolving. Yes. Things do fit and match. आप एक जगह से दूसरी जगह उसको use करते हो अपने पीछे वाले experience को, but it evolves. So be patient. Things will come. Don't rush anything. And learn from if somebody is giving you an advice, if they have been through that, learn from it. Even if you don't wanna follow that advice, that's okay. But learning from people's experience is also very, very beneficial. Right. एक मुश्किल सा सवाल. If I take back you to before the time you were an intermediate and take back you to the journey, what would you do different अगर आपको दोबारा से वो journey design करने का मौका मिले? What would I do different? I don't think I would do anything different. I'm very happy and satisfied where I am. I think I trusted Allah's plan. और अल्लाह जो है वो आपका pathway ज़्यादा best बनाता है. जो आप सोच रहे होते हैं, I think वो आपके लिए best नहीं होता. आपको लग रहा होता है, but maybe what I would do different is uh, learn things which I know right now. मैं थोड़ा early सीख लेती कि मैं leadership पहले सीख लेती क्योंकि leadership comes into play a lot. मैं बहुत सी सही चीजें पहले सीख लेती अगर ये कर सकती, but मैं change अपने pathway में कुछ ना करती because I think what Allah planned for me was the best. I call it time value of skill. आपने time value of money पढ़ी होगी. So it's just time value of skill के एक चीज आपने आज सीख ली वो आप 10 साल बाद सीखें तो it's going to benefit you more अगर आप इसके ऊपर आज तवज्जो दे रहे हैं. मैं आजकल के बच्चों को रेगुलरली समझाता हूँ और लग रहा समझते हैं. Thank you so much for being with us and thank you Mr. Afnan for recording this podcast. Inshallah हम will do it again and again with other people as well and we'll make it a regular feature. Thank you. Thank you for having me. और अगर किसी student को मुझसे contact करना है, they can reach out to Dr. Yahya and he will connect me. Right.